तुरंत ही हमको एक ब्रेक लग गया, यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया। Our plan is to bring them back to the Stone Age. Now the market is depending on geopolitical. Definitely. आपको निफ्टी में, इंडेक्स में या फ्यूचर में आपको ज़्यादा 500-600 पॉइंट की रैली लेने की ज़रूरत नहीं है। महीने को 500-600 ले लो बस है। ओनली द थिंग इज People use and you use astrology into financial analysis. एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इफेक्ट्स द मार्केट। आई वोंट से नो, क्योंकि इन इंडिया वी सी द मून एस्ट्रोलॉजी रहेगा। आउट ऑफ इंडिया अगर यूएस में जाओगे सन एस्ट्रोलॉजी रहेगी। वो सन के हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं यार। इंडिया थ्रू मून सी श्योर क्या होता है, नीचे चला जाता है। द सेम में मार्केट मेक्स अ बॉटम देयर। उस टाइम पे अमोस पे क्या हो जाता है, नो मून डे पे मार्केट विल बी इन द टॉप। आई हैव सीन मेनी पीपल, अरे यार आज अमोस था, आज लॉस हो गया। सेबी का एक रिपोर्ट है, उसमें उसने मेंशन किया कि ट्रेडर्स 3 साल तक कंसेक्यूटिव अगर लॉस करते हैं, उसके बाद भी 75% ऑफ देम, हर 4 में से 3 इंसान स्टिल ट्रेडिंग करता है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द टिकर, अ पॉडकास्ट वेयर वी टॉक बियॉन्ड स्टॉक प्राइजेस, a podcast where we dig deeper into the world of not only finance but also technology and AI. My name is Ritvik Dashora. I am CEO and co-founder of Tradomate.one, and this is the 6th episode of our brand new segment, How Traders Think. Today I'm joined by someone who has worked with a lot of hedge funds, who has been a professional trader for more than 5 years, Mr. Kirti Kumar. In this episode, we are going to talk about how Mr. Kirti Kumar trades. What are those bad and good days of his trading? So yeah, thank you so much, Kirti ji. Yeah. आप हमारे इस पॉडकास्ट डिस्कशन में आए हैं. Would love to know about yourself. See, once again, thank you for calling for your podcast, Ritik sir. So, I have got a good journey in trading since 5 to 6 years. And before that, we have worked with many corporate companies. Hedge funds में hedge funds में भी काम किया है, हाँ जी. अभी भी कर रहे हैं. Now we are handling on portfolios on corporate levels. According to me, trading is nothing but a mindset game, as you know. Trading क्या है, सब लोग सीख के लेते हैं कि it will be like it is not a easy task also. Trading is not a easy task, and it is not everyone's bread butter. You need to have a skill. You need to take an experience in trading. वो तो आपको भी पता है. It's a mix of science and art. जो लोग बोलते हैं. हाँ, दोनों. बट आपका जो एक्सपीरियंस रहा है लाइक मोर देन 15 ईयर्स, Okay. तो आपने, मुझे एक्चुअली वो जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, फिर इवेंचुअली आपने कैसे ग्रो किया, आपने हेज फंड्स में काम किया है, नाउ अ ट्रेडर. ये जर्नी किस तरह से लगी है? See, I had a roller and coaster journey, sir. I had worked for many high priorities companies. I can't mention that on this video. And हमको कुछ restrictions है. And from there, I went for a NSA Academy and been there, and I learned and I worked also. From there, I went for again priority companies. And from there, I worked as a fund manager for banking sections. And then even for corporate companies. And then I came back to Belgaum and started my own capital investments. Interesting. And we conducted many mentorship programs in Belgaum and Kolhapur, which is nearby to Belgaum, 100 kilometers nearby. And we are connected in Bagalkot also. Teaching भी चला, और ऐसा नहीं कि टीचिंग ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट नथिंग. And not like a commercial way also. If they are interested, we make a bunch of students and we teach them thoroughly. उसमें टॉपिक भी पूरा रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें स्लैब्स रहेगा कि सिर्फ ऑप्शन का सीखना है या इक्विटी का सीखना है या हेजिंग का सीखना है, नहीं है. पूरा ही कवर करेंगे. दैट विल बी ऑफ 60 आवर्स टाइम फ्रेम, जो हमारा पोर्शन रहेगा. अभी हमने ऑनलाइन भी लिया है. Now we have started for only MBA students for online. मोस्टली वो टाइम पीरियड में एकेडमिक पे ही आपका, हाँ, एकेडमिक भी रहता है, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट सर. जैसा ही अपना वो बंच बनेगा स्टूडेंट्स का,
15 to 20, then only we'll take a session. फिर आप ट्रेडर बन गए उसके बाद? फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया. ट्रेडिंग में क्या है, रोलर कोस्टर हमने बहुत देखा है. तुरंत ही हमको एक ब्रेक लग गया, यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया सर. Then we saw a big hurdles there, big hurdles, big roller coaster journey, and then the real journey started. Then I faced my personal issues also, my personal life challenges, and I had taken a break for that also for 6 months. और जब मैंने ब्रेक लिया था, एक्चुअली आई वांटेड टू लीव द प्रोफेशन. हमने कमाया भाई, मुझे छोड़ना भी था ये प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन एंड माय स्किल एंड माय एक्सपीरियंस डिड नॉट लीव मी. आपका मोस्टली जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो किस तरह का होता है? वी वर हैविंग अ डिस्कशन आउटसाइड कि यू प्रिफर ऑप्शन सेलिंग, यू हैव बीन फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल. मैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछूंगा इवेंचुअली, बट व्हाट इज योर ओवरऑल ट्रेडिंग स्टाइल? ऑप्शन बाइंग जो है दो तरीके से, बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में है, ऑप्शन सेलिंग में है. ऑप्शन, अरे भैया ऑप्शन सेलिंग अब ट्रेंड चालू हो गया है, पहला तो बाइंग ही था. ओनली द बिग डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन ओनली दे वर सेलिंग, दे वर द राइटर्स. अगर आप 10 साल पीछे चलोगे, ओनली दे वर द राइटर्स एंड सेलर्स. मेजॉरिटी तो अभी भी वही है. हाँ, अब अभी भी वही है. अब जो ट्रेडर्स आ गए वो भी सेल करते दे आर हाइप्ड आउट. ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन पैसा है. हाँ, आई एग्री, ऑप्शन सेलिंग में पैसा है, बट द विनिंग रेशियो इज मोर इन ऑप्शन सेलिंग. बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बाइंग इज बेटर देन ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो. ओनली द थिंग इज अ ट्रेडर नीड्स टू वेट विथ पेशेंस. सबको वेट नहीं करना है. मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों ने क्या किया है, दे गो एज द मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:15, दे आर एडिक्टेड फॉर ऑप्शन बाइंग. अरे भैया मार्केट 6 घंटा है, जब 6 घंटा है, शो चलने वाला है, तुरंत आप 9:16 को क्यों बटन दबा रहे हो? अच्छा, तो आप बेसिकली एंट्री लेने से पहले वेट की बात कर रहे हैं. वेट, सी, और आई बिलीव ऑन चार्ट्स सर, आई बिलीव ऑन चार्ट्स. अच्छा, आप टेक्निकल एनालिसिस. Yeah, I believe on charts, and candlesticks are angels. Market is supreme. Candlesticks are angels, sir. And once if you learn, you get attached for the market emotionally, candlesticks and your charts. आप तुरंत आप खुद ही वेट करोगे. People don't want to wait for the ball to come in their court. Traders जो कर रहे हैं, they are chasing the ball. सेटअप हर 6 घंटे में 2 बार आएगा या 3 बार आएगा. सेटअप के लिए वेट करो और ऐसा एक ट्रेड ले लो. एक ही ट्रेड काफ़ी है. दैट इज, आई डोंट बिलीव इन लक ऑल्सो सर, ट्रू टू टेल यू. मुझे तो लकीली कुछ भी नहीं हुआ है. मुझे, आई वर्कड हार्ड एंड आई बिलीव इन स्किल. आई टेल एवरी स्टूडेंट, वेट फॉर वन ट्रेड, दैट इट विल बी a one shot, one kill. There will be no luck, only it will be a skilled. डिसिप्लिन एंड पेशेंस. डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड ट्रेड रहेगा आपका. हाँ जी, यही प्रॉब्लम हम लोग भी बेसिकली, जो हमारी फिलोसॉफी जो है ट्रेडोमेट में है यार, वो भी यही है कि यार देयर आर लॉट ऑफ रिक्रिएशनल ट्रेडर्स जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की तरह ट्रेडिंग को देखने लगे. आई थिंक देयर इज अ टाइम दैट पीपल शुड स्टार्ट डूइंग मोर एनालिसिस. बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है, राइट वे ऑफ स्क्रीनिंग द स्टॉक्स. आपने टेक्निकल एनालिसिस की बात की थी, चार्ट, राइट, दे आर एंजल्स, कैंडलस्टिक्स आर एंजल्स. एक्चुअली अगर मैं उस पर एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस डू यू डू एंड व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज डू यू बिल्ड? क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग फिलोसफी है वो मुझे ऐसा समझ में आया कि यार आप बाइंग एंड सेलिंग दोनों करते हैं. पेशेंस इज द की, बट ऑप्शंस इज योर कप ऑफ टी. बट व्हाट इज दैट एग्जैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज और टेक्निकल एनालिसिस यू डू? सी सर, टेक्निकल एनालिसिस यानी कि क्या है, अब का जो ट्रेंड चल रहा है 2025, आफ्टर दैट द एरा ऑफ कोरोना, 21st जो मार्केट बूम हुआ है, मेजर ट्रेंड नाउ, द मार्केट इज डिपेंडिंग ऑन जियोपॉलिटिकल. डेफिनेटली हमारा टेक्निकल एनालिसिस सब वेस्ट जाएगा. कब चलेगा? व्हेन द मार्केट इज मूविंग इन अ फ्लो, मूविंग इन अ स्लो डायरेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस चलेगा, सब चलेगा.
अब जो चल रहा है, न्यूज़ इज एवरीथिंग, न्यूज़ इज द सोर्स, न्यूज़ इज द मेन मनी, सोर्स मनी फॉर द स्टॉक मार्केट. उसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप? सो व्हेन देयर इज अ न्यूज़, व्हेन देयर इज अ हाइप मूव, यू कैन लुक फॉर ओनली कैंडल स्टिक्स. अरे यार, आपको चैट बता रहा है, कैंडल स्टिक्स बता रहा है सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, भैया पैसा ले कर लो, लोगों को करना नहीं है. पीपल नीड टू हैव पेशेंस. ये क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ? ऑफकोर्स, वाई इज टेकिंग आउट, पुटिंग एट अ ट्रेड? either he is buyer or seller, whatever he is. Why he is buying? Either he is buying a stock. For what purpose? He needs to have a reason. मैंने क्यों लिया? मैंने एक बंदे को मिला था. I'll tell you one small story. His portfolio was nearly of 4 crores. खुद ट्रेडिंग करता था. उसको ये नहीं पता था मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं बाय क्यों कर रहा हूँ. He would only buy futures, no options. I'll tell you. उसको ऐसा था कि सिर्फ मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड लेना है. उसका तो बड़ा बिजनेस है, वो अलग सा है. मैंने बोला एक बार, अरे सर जी आपका बिजनेस है अलग है, यू टेक अ सजेशन फ्रॉम एनी गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र. नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ. और वेन एवर आई वुड मीट, ही वुड शो मी द, ये मैंने लिया है कीर्ति, मैंने ये लिया है. सर आपने क्यों लिया है? मन में आया मैंने लिया. ऐसे भी लोग हैं, पैसा बनाते हैं. हाँ मन में. नो, इट डजंट मैटर फॉर हिम. तो वो तो एक गेम ही हो गया, रिच पीपल गेम. हाँ, 4 करोड़ मन में हो गया, ले लिया. ऐसा ही याद आ गया हमने, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं आज, इसलिए मैंने ट्रेड किया. एक सिंपल सा बोल देता हूँ. सबको पता है बॉलिंजर बैंड, थोड़े लोग बोलते हैं यूज़ नहीं करना है, थोड़े लोग बोलते हैं यूज़ करो. सिंपल सा है. बॉलिंजर बैंड, वॉट एवर द लोवेस्ट बैंड इज देयर, लोवेस्ट बैंड फ्रॉम पास्ट 5 और 10 days, वो आपका बाइंग रेंज रहेगा. आइदर इट माइट बी इन इंडेक्स, इट माइट बी इन एवरीथिंग, कमोडिटी, फॉरेस्ट, कहीं पे भी रहने दो, इट विल बी योर बॉटम बाइंग रेंज. अगर आपको इंट्राडे में प्ले करना है, थोड़े लोग इंट्राडे है भाई, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, ओनली कॉल या पुट. कॉल, थोड़े लोग ऐसा मैंने देखा है सर, आप नहीं मानोगे, इधर कॉल नहीं चला, इधर पुट, कॉल नहीं चला. दे आर प्लेइंग लाइक दैट ब्रिक गेम. पहला आता था ना हमारे टाइम पे, एक ब्रिक गेम आता था, वीडियो हैंडी गेम. दे आर प्लेइंग लाइक दैट. सिर्फ पैसा बनाना है. नहीं, ऐसा नहीं बनेगा पैसा, डिसिप्लिन से बनेगा. यू नीड टू, आई टोल्ड यू नीड टू वेट. अरे मोबाइल पे तो कुछ, हाँ अगर आपका ट्रेडोमेट आ गया, अभी जो AI चल रहा है, ऑन दैट दे कैन डू ऑन मोबाइल, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, because it gives a command, they will punch out, as I have seen. लेकिन आपका जो है, if they want to do on a professional note, then it's not possible. Then they need to have a setup, they need to wait. हमने एक पोल किया था, हमारा एक इवेंट हुआ था अप्रैल में, अल्फा ट्रेडर समिट करके बैंगलोर में हमने किया था. तो काफ़ी ट्रेडर्स आए थे, तो मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था. आई स्टार्टेड विद अ पोल कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइज डू ट्रेडिंग ऑन मोबाइल, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज डू ट्रेडिंग ऑन some systems, right? I think 90-95% of the people, 4-5 ही हाथ ऐसे खड़े हुए थे जिनने बोला था मोबाइल पे करते हैं, बाकी सभी लोग सिस्टम पे करते हैं. गुड. जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक हुआ हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता था आजकल इतने मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स आ रहे हैं, इतने सारे ब्रोकर सिर्फ मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं. बट जब हमने हमारा प्रमोशन ऐसा नहीं था उस इवेंट का कि यार आप सिर्फ सिस्टम बेस्ड ट्रेडर्स ही आओ, हमने बोला था प्रोफेशनल ट्रेडर्स आओ. बहुत सारी अलग अलग जगह से आए थे, बैंगलोर के बाहर से भी आए थे, बट स्टिल 95% ऑफ दोज पीपल वर डूइंग ट्रेडिंग ऑन सिस्टम्स. मोबाइल पे अगर कर भी रहे हैं तो हल्का फुल्का इधर जा रहे हैं और उनको पता है क्या है उनका पूरा सेटअप, उस बेसिस पे अगर करना हुआ तो करते हैं, बट दे प्रिफर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग. और इनफैक्ट ये जो मोबाइल पे जो आजकल जो आई थिंक हुआ है, ये एक एड्रेलिन रश की भी एक चीज़ हुई है. सेबी का एक रिपोर्ट है, उसमें उसने मेंशन किया कि ट्रेडर्स 3 साल तक कंसेक्यूटिव अगर लॉस करते हैं, उसके बाद भी 75% ऑफ देम, हर 4 में से 3 इंसान स्टिल ट्रेडिंग करता है. हमारा छोटा सा डिस्कशन बाहर हुआ था, मैंने बोला था कि हम पॉडकास्ट में डेफिनेटली इस पर डिस्कस करते हैं. और टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस फील्ड विच इज़ एस्ट्रोलॉजी. हाउ डू यू थिंक पीपल यूज एंड यू यूज एस्ट्रोलॉजी इनटू फाइनेंशियल एनालिसिस? एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इफेक्ट्स द मार्केट. आई वोंट से नो, क्योंकि in India we see the moon एस्ट्रोलॉजी रहेगा.
आउट ऑफ इंडिया अगर यूएस में जाओगे सन एस्ट्रोलॉजी रहेगा, वो सन के हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं यार। इंडिया थ्रू मून, एस्ट्रोलॉजर सी थ्रू मून, मून के फर्स्ट स्टेप उनका मून से रहेगा कनेक्टेड। अच्छा, एनी रीजन फॉर दिस? I'll give you the reason how it is connected to the market. मून यानी कि क्या है, या तो फुल मून डे रहेगा या तो नो मून डे रहेगा। नो मून डे यानी कि क्या होता है हमारे इंडियन कल्चर में, देश से इट अ ब्लैक डे, अमावस। फुल मून डे यानी कि पूरा मून रहेगा, दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा। यू जस्ट इमेजिन सर, नेचर का है वो। देन वील कनेक्टेड फॉर स्टॉक मार्केट ऑन फुल मून डे। अगर पूर्णिमा, व्हाट द सी वाटर डज, हाई टाइड लो टाइड होता है, पानी अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, ऊपर नहीं आता है सर, बीच के ऊपर नहीं आएगा पानी। अच्छा, इट विल मेक अ बॉटम, देन इट विल रश आउट। सेम तरीके से मार्केट विल मेक अ बॉटम इन फुल मून। फुल मून डे। फुल मून डे जो रहता है, मार्केट आइदर ऑन फुल मून डे डेट और बिफोर फुल मून डे और आफ्टर फुल मून डे, it will be on a bottom level. It will give a spike like a latitude of the water and it will get down. It will come down. बट मार्केट को बोलेंगे कि यार दो तीन चीज़ें होता है जितना मैंने देखा है, एक तो डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई तो चलेगा सर, ओनली ऑन दिस स्पेशियस डेज। नहीं, डिमांड सप्लाई पे मार्केट मूवमेंट करेगा, न्यूज़, पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल या फिर फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स, ये तीन चीज़ें मोस्टली मार्केट को मूव करती है। व्हाट इफ फुल मून डे के आसपास में कुछ अपोजिट चीज़ें हुई है, हो सकता है काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ गई है, नहीं तो रादर देन बॉटम मेक्स अ हाई। इधर विनिंग रेशियो जो है ना 85-95% है, 85-95। सिर्फ उसी के टाइम पे भी अगर ट्रेडर ने काम किया तो वी हैव एक्सप्लेन्ड देम इन द मेंटरशिप प्रोग्राम हाउ इट इज, यू नो सर। सेम है, दैट इज अ नेचर। आई हैव टोल्ड यू, आपने बोला लॉन्गिट्यूड सी शोर क्या होता है, नीचे चला जाता है। द सेम वे मार्केट मेक्स अ बॉटम देयर। एंड उधर क्या है, उस टाइम पे अमावस पे क्या हो जाता है, नो मून डे पे मार्केट विल बी इन द टॉप। थोड़े लोग, आई हैव सीन मेनी पीपल, अरे यार आज अमावस था, आज लॉस हो गया। मैं पक्का इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। नहीं करना चाहिए बिकॉज़ आई हैव नेवर, नहीं, वी हैव डन इट एंड वी हैव many our students are working on that, only on that day. Any other thing how apart it is, from... you know sir, there you can catch on index. इंडेक्स के लिए बढ़िया बनेगा, गुड फॉल तो आएगा, गुड अप मूव तो रहेगा। अगर निफ्टी में, मैं तो बोलता हूँ आपको निफ्टी में, इंडेक्स में या फ्यूचर में आपको ज़्यादा 500-600 पॉइंट की रैली लेने की ज़रूरत नहीं है। महीने को 500-600 ले लो बस है। बट इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द फुल मून, नो मून इन इंडिया, आपने सन का बताया इन यूएस, इंडिया में एनी अदर थिंग्स दैट यू डू इन एस्ट्रोलॉजी? नो, सी सर, सॉरी मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं, एक्चुअली सही है, बहुत बराबर है। नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। मेनी पीपल डोंट नो दैट। इट इज़ वेरी इजी। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट टू शेयर द नॉलेज, आई विल शेयर द नॉलेज इजीली। इट इज़ वेरी इजी। वंस आप, एक चार्ट है जैसा मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि उस पर क्या है आपको देखना है, मून, व्हेन द मून ट्रांजिस्ट्स, मून का एक ट्रांजिशन रहता है, वो मून व्हेन इट विल ट्रांजिस्ट ऑन द चार्ट्स। फॉर एग्जांपल एस्ट्रो कुंडली करके है आपका, एस्ट्रो कुंडली करके है सर, क्या चीज़ है? सॉरी, एक ऐप है, फ्री ऐप है, इट इज़ अ फ्री ऐप फॉर इंडिया नाउ। अच्छा, अब तो फ्री ऐप बहुत हो गए। उस पर आपको ऑनलाइन पे मिलेगा, व्हेन इट इज़ ट्रांजिस्टिंग, मून इज ट्रांजिस्टिंग, इट विल गिव अ डेट्स। आपको डेट्स ये क्लिक करना है, सिर्फ आपको लाइव मार्केट तो कब रहेगा आपका 9:15 to 3:30 रहेगा। अगर मून कोई भी मार्स या यूरेनस, व्हिचएवर इट इज ट्रांजिस्टिंग ऑन दैट डेट, लाइव मार्केट डेट पे अगर ट्रांजिस्ट हो रहा है, आपको एक टाइमिंग मिलेगा। ट्रांजिट मतलब, सॉरी, वो मून ट्रांजिशन रहता है। अभी देखो सर, मून ट्रांजिशन है, यानी कि कैसा है, नाउ इट इज़ ट्रांजिटिंग इन द मर्क्यूरी। मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पे, ओके। इट विल बी ट्रांजिटिंग ऑन एवरी प्लैनेट। वो जो ट्रांजिस्ट हो रहा है ऑन अ प्लैनेट, सर्टेन प्लैनेट, वो आपको टाइमिंग पे रहना चाहिए।
मार्केट टाइमिंग पे ट्रांजिस्ट होना चाहिए. मार्केट टाइमिंग क्या है? यानी कि 9:15 to 3:30, and those days hardly you will get 10 to 13 days in market timings. 10 to 13 days. हम अपना तो 20 से 22 दिन मार्केट ऑन है सर. आपको टाइमिंग्स ऐसा मिलेगा, टाइम साइकिल और ये मून साइकिल जो है ना, एस्ट्रोलॉजी साइकिल आपने बोला सुना नहीं है, उसमें मैसिव मूव आ जाता है उसी टाइम पे. आपको वो मूव कैच करना है. फर्स्ट आप बैक टेस्ट कर लो. 5 साल का, चलो 5 साल का भी मिलेगा आपको. वो एस्ट्रो ऐप में हर 5 साल तक भी मिलेगा, 10 साल का भी मिलेगा. चार्ट्स भी रहेंगे ट्रेडिंग व्यू में. आप उधर भी बैक टेस्ट कर, वो टाइमिंग पे मूव आया है कि नहीं आया है. मैसिव मूव, अब मोमेंटम मूव विल बी देयर. एंड व्हेन यू नो दिस पेशेंस, अगर आपको करना है तो इसी टाइम पे काम करो ना. इंडेक्स में you will get a index move of nearly all of the sudden moves at least 80 to, I am telling about Nifty, 80 to 140 points on that timings. मुझे तो बड़ा एक साइंस वाला क्वेश्चन है. I come from the science background. Yeah. What might be the scientific reason behind this? Is it basically See, emotional? No, not an emotional, sir. हमारे बुजुर्ग बोलते थे, आपने भी सुना होगा, ऑलवेज हिस्ट्री रिपीट्स. आई से इन स्टॉक मार्केट ऑलवेज हिस्ट्री रिपीट्स. जो पैटर्न्स पीछे आया हुआ है, द सेम पैटर्न्स आर ऑकरिंग इन नाउ आल्सो. क्यों सब लोग बोलते हैं सर यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? डिमांड और सप्लाई क्या है? सही बात है. हिस्ट्री में रिपीट हुआ था सर. डिमांड उधर था, यानी कि डिमांड उधर था, अभी भी इधर है. आप बोल रहे हो सप्लाई क्या है? अगर हम हो गया इसका, नाउ इट इज इन सप्लाई जोन. सप्लाई क्यों सप्लाई बोल रहे हो? इट इज इन हिस्ट्री. नो, फ्लैशबैक में था सर, हिस्ट्री में था करके हम प्रिडिक्ट करें, हाँ यार ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है. सेम थिंग सर, एवरीथिंग रिपीट्स एज हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स. एक चीज एग्जिस्ट करती है, मार्केट एनॉमली. इसका मतलब ये कि पहले ऐसा होता था कि मंडेज को हमेशा मतलब ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी, मार्केट की ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती थी. जनवरी में यूएस में मार्केट ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती थी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता था, नया शुरू होता था. मंडेज नए न्यू वीक. लोगों को एनॉमली पता चली, दे स्टार्टेड टेकिंग अपोजिट पोजीशंस, स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी, और वो एनॉमली खत्म हो गई. तो ऐसा कहते हैं कि मार्केट में जो एनॉमलीज होती है वो इवेंचुअली खत्म हो जाती है व्हेन इट्स अवेलेबल, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द पब्लिक. ये एनॉमली जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? हाँ, खत्म अगर एग्जिस्ट करता है या सी, खत्म जो होता है सर, जिसको वो मार्केट में हाइप बनाना है, लाइक एन प्रोडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू मी लाइक ए प्रोडक्टिविटी. सबको पता है. अगर आपको रिटेल को जब पता चलेगा, उसका खत्म होगा ट्रेंड. बिग प्लेयर्स, FIs, FPIs, उनको अगर पता चल गया, अरे यार ये तो ट्रेंडिंग चल रहा है, ये खत्म कर देंगे. सब लोग क्यों बोलते हैं सर ट्रेडर्स की, अरे यार मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए आता है मार्केट? क्योंकि आपको पता है सर, उनको आपका स्टॉप लॉस इधर ही लगा हुआ है. वो कोई पैटर्न से काम करेगा या कोई कैंडलस्टिक से पैटर्न काम करेगा, वो तो आपको सबको पता है कि इधर ही स्टॉप लॉस रहेगा. अब फॉर एग्जांपल एक कैंडलस्टिक के बारे में बोल देता हूँ सर. सब लोग क्या बताते हैं, हैमर यानी कि क्या है? हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी का शॉट. हैमर आया तो आप बाय कर लो. सही है. पैटर्न हैमर आया तो बाय कर लो, यानी कि हैमर जैसा कैंडल रहेगा, बायर्स एक्टिव है और आप बाय कर सकते हो जब टॉप टूटेगा. हम तो बोल रहे हैं अरे यार वेट करो, नीचे टेस्ट करने के लिए आएगा तब बाय करो. कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. बायर्स आर एक्टिव. अब आप देखोगे सर, क्यों बायर्स एक्टिव है? नहीं कि आप बायर्स नहीं है, ऑल बिग प्लेयर्स आर बायर्स. दे नो, नाउ दे केम टू नो रिटेलर्स कब एंट्री करेंगे, ये टॉप कटने के बाद. थोड़ा कटाएंगे टॉप, they'll book their profits and again they'll buy on the bottom. This happens. Even chart patterns में काफी सारे ऐसे बनते हैं. जैसे डिमांड सप्लाई की जो आपने बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट. So any specific types of chart patterns for demand and supply you track? सर चार्ट पैटर्न्स यानी कि क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न यू नीड टू स्टडी, नॉट मोर ऑल्सो.
hardly I can tell 5-6 candles. One, you need to remember the bullish candle and bearish candle. जो बड़ा बाइंग आएगा या बड़ा सेलिंग आएगा. One, you can remember for hammer also. Inverted hammer and hammer is most important. जैसा मैंने बोला, हैमर तब बाय करो जब टच करके नहीं आए तो चलेगा. ट्रेड क्यों लेना है सर? डिसिप्लिन में रखो ना. आप ट्रिगर तब मारो जब वो आएगा आपके बॉल आपके कोर्ट में. और एक आप ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम, बहुत कैंडल्स है सर. देयर आर मेनी कैंडल्स. एवरीवन आर मेकिंग एवरीथिंग रील्स एंड पोस्टिंग देम. ये देखो वो देखो, नहीं चाहिए. 5 से 6 कैंडल काफ़ी है. वन इज बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इट इज़ वेरी गुड कंफर्मेशन. RSI स्टोकेस्टिक. हाँ, RSI स्टोकेस्टिक से आप डिमांड और सप्लाई पहचान सकते हो. एक मैं छोटा कहानी बताता हूँ सर. वंस आई वाज इन कोल्हापुर. वन लेडी केम नियर मी. सर मुझे ट्रेड करना है. मैंने पूछा उनको कि मैडम आपको आता है ट्रेडिंग? नहीं, मुझे ऐसा एक स्ट्रैटेजी बता दो बस, मैं तुरंत उधर आया तो उधर आ गए तो मैं बाय कर लूँगी. मैंने उनको बोला आपको क्या पता है? मुझे कैंडलस्टिक्स पता है, उतना ही पता है, मैं देख लेती हूँ ऊपर नीचे. आई नो एवरी प्राइस वगैरह. देन आई टोल्ड हर इफ़ यू नो द चार्ट्स ऑफ प्राइस वेयर इट इज़ गोइंग. अब उनको मैंने बोला RSI स्टॉकिस्टिक्स यूज़ कर लो. मार्केट इज़ नथिंग बट ऑन डिमांड एंड सप्लाई. आप बेच रहे हो, मैं ले रहा हूँ. आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ. मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो. इतना ही है. नो रॉकेट साइंस सर. ओनली यू नीड टू बी अटैच्ड टू द मार्केट. इमोशंस जैसा प्ले हो जाता है. देन आई टोल्ड हर many ladies get successful in this stock market but many ladies are not there. ट्रेडिंग के मामले में ज़्यादा नहीं है सर. ओनली मेंस आर मोर. अब लेडीज़ आ रहे हैं ट्रेडिंग के मामले में. एक और बहुत अच्छा स्टार्ट है. ऑल्दो मेन ज़्यादा है ट्रेडिंग में, कंप्लीटली एग्री. आई थिंक अराउंड 85 और 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेन, बट ज़्यादा प्रॉफिटेबल लेडीज़ है. क्यों पता है? और अच्छा खासा डिफरेंस है. अराउंड 93% ऑफ द मेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, बट अराउंड 85% ऑफ द फीमेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी. मतलब ये एक स्प्रेड है समवेयर अराउंड 7 to 8% का. 7 to 8% they are beneaters. They are beneaters. Why do you think? मतलब आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस. Yeah, they have patience. Ladies have patience. According to me, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं ज़्यादा लेडीज़ को मोटिवेट किया हूँ कि बी अ ट्रेडर. इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एटलीस्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम एक सेटअप करके ट्रेड कर लो. जैसे भी बैठ रहे हो पैसा तो बनेगा ना सर. बिकॉज दे हैव पेशेंस. पेशेंस लेवल उनका ज़्यादा है. ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे. दे नो दे हैव अ पेशेंस फॉर 9 months टू होल्ड अ बेबी. वो भी पेशेंस हमारे पास नहीं है सर. वो सही बात है. मेल के पास नहीं है. मेल के पास पेशेंस कम है. दे आर रशिंग फॉर द रेस, रशिंग फॉर द बॉल एंड देन लूजिंग मनी. एंड दे लूज द मनी. दीज लेडीज आर वेरी स्मार्ट. दे वेट. अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है. दे आर लाइक दिस. ठीक. that's a great insight. Thank you so much for sharing all the knowledge. कुछ चीज़ें तो लिटरली मेरे लिए बहुत नहीं थी, especially the astrology thing. I would like to do a quick rapid fire if you are comfortable. मतलब कुछ quick questions and आप quick answer. Sure. What is your most profitable trade ever? In a day I have not crossed 33 lakhs above. 33 lakhs is the best one. Best trade. Worst is 11,50,000 something when there was a election of 2014. अच्छा, तो आप अगेंस्ट थे? नहीं उधर तो वॉश आउट ही हो गया. वो उस समय बहुत वॉलेटिलिटी था. एनी ट्रेडर दैट यू लुक अप टू? कोई आइडल आपके हों या फिर? माय मेंटर. योर मेंटर. इफ यू कैन. देयर आर 2 mentors. One is Sharad Junjunwala sir and one is Ronak Mundra sir. अच्छा. My lifetime there are 2 mentors sir. Got it. Any experience that you will never forget in the world of trading? It can be good or bad. I never forget bad sir. Good तो होता ही रहेगा, but I say never forget bad. I have seen again biggest volatile. I have seen many people washing out on Ukraine-Russia war. That was an experience. No, I have seen people. I have seen the traders. मतलब इवेंट स्पेसिफिक आपको
जो एक्सपीरियंस रहा है हमेशा कोविड ये हुआ है नहीं, कोविड में नहीं है सर, कोविड में कुछ एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ है, लेकिन जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था उस टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे यंग यूथ्स एंड इवन आई हैव सीन मास्टर्स आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. कोविड तो नेक्स्ट आ गया, उससे पहले यूक्रेन रशिया आ गया. My last question, how much time do you spend a day on a daily, on an average? On analysis or on a system? Everything. Everything. Everything to according to me 14 hours, sir. 14 hours Yeah, yeah. a day on an average for trading related things. Yeah. My God. Cool. Thank you so much for sharing all the knowledge, everything, and your insights. One quick advice that you would like to give to our audience. I can give a strategy also, sir, for an intraday trader. One needs to follow the charts and the patterns. As I told you all, demand and supply, you can use an RSI stochastics as an indicator. And on a candlestick patterns, I'll tell you a simple strategy. We have taught our students like in 3 idiots. 3 idiots यानी कि क्या है, आपको अगर बाय करना है, वेट फॉर द पैटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स. अगर ग्रीन होना है ना, फुल बुलिश कैंडल अगर मिलेगा आपको 5 मिनट, इंट्राडे ट्रेडर विल सी अ 5 to 3 minutes candlestick patterns time frame. So if he is getting a 5 minutes consecutive candles of green bullish candles, उसके टॉप पे अगर बाय करना है, जैसे ही टॉप कटेगा यू कैन बाय and you know that it will reach your target. Whatever the length of the 3 consecutive candles will be there, that will be the target for your next. So 3 green candles, then you buy. And yeah, 3 green candles and 3 red candles. अगर उसके ऊपर क्लोजिंग जो मिलेगा उसका आपको टारगेट ही पता चल जाएगा. यू एन ऑप्शन बायर कैन मिंट अ गुड मनी एवरी डे. रोज तो मिलेगा ही 3 कैंडल. So a homework to all of you guys, you can actually backtest this exact thing. कि 3 ग्रीन कैंडल्स अगर जो भी स्टॉक्स पे आए हैं हिस्टोरिकली, यूज द बैक टेस्टिंग फीचर इनसाइड आवर स्क्रीनर टू एक्चुअली सी कि एग्जैक्ट बेस्ट स्टॉक्स आपकी फिलोसफी में कौन से हो सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक विच स्टॉक्स विल कम इन द लिस्ट जो कि बेस्ट होंगे? हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स. हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स whichever are Zomato. No, Zomato. Zomato भी है, like in 4 digits according to me. 4 digits का select कर लो because it will be a wallet. It will mint. Stock trading क्या है? You need to mint money from the screen. जब मूव हो रहा है तो ही पैसा बनेगा. इंट्राडे करना है तो you need to select a high volatility stock like Siemens. There, Divis Lab is there. फार्मा में सब में है, हीरो मोटो है, मारुति है. आपको बड़ा लगेगा वो फिगर, अरे भैया ये 4000 का स्टॉक है, 3000 का स्टॉक, 2500 का स्टॉक है. नहीं, लेकिन उतना पैसा बना के देगा ना आपको. That's good. That's a great homework, guys. Please do it. आपको बैक टेस्टिंग करना है. आई थिंक बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे. मोस्टली सीमेंस आएगा शायद, मुझे भी लगता है. हाँ, सीमेंस लास्ट टाइम आया था सर, आपने देखा ना, हमने देखा था. Yes. So thank you so much, Kirti ji, for all the time and such a great discussion about all the things that we talked about. And thank you so much, guys, for watching this video till the end. As I mentioned in the beginning, Beyond the Ticker is not only talking about stock prices. We had a discussion of astrology as well, जो कि literally बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में नहीं था. It was completely candid. Even मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है. Now I know what to read after just after this particular podcast. And like this only, we will keep on bringing different types of topics on Beyond the Ticker. If you have any idea, if you want us to cover any specific topics, please let us know in the comment section. And if you liked even one thing about this podcast discussion, please click on the like button. It really helps with the algorithm. And make sure you subscribe to our YouTube channel and hit on the bell icon because we don't want you to miss out on the great discussions that are going to happen in the future as well. With this, please stay updated, stay informed, and always remember, trade intelligently.